Hello everyone, my name is Shweta Singh. I'm the founder and CEO of SuccessScribe Overseas Education Consultancy. I hold 11 years of experience in the same education industry and I've guided more than 3,000 plus students for world's top-notch universities and get them placed to these universities too. Today my topic is one of the most trending country which is there in demand and that's Germany. हाँ जी, जर्मनी। वैसे तो मार्केट के अंदर में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो जर्मनी के लिए गाइडेंस दे रहे हैं बच्चों को, बट व्हाट आई फील लाइक कि क्लैरिटी जर्मन एजुकेशन को लेकर के होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो आज की टॉपिक में हम जर्मन एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, उनकी यूनिवर्सिटीज के बारे में समझेंगे, यूनिवर्सिटीज की बाइफिकेशंस के बारे में समझेंगे, and then we'll be talking further that how to get into these universities. Alright, so when it comes to the German education system, the very first thing which comes to our mind is university. So Germany की university को bifurcate किया गया है two wings में. One is public and the second one is the private universities. Public universities की भी bifurcation है. And that I have divided into three categories. So it's easy for the student to understand the German education system well and the German public universities well. So ये तीन categories हैं Universität, Applied Science and Technical line universities and how they are differentiating themselves with each other. So जो difference है वो है curriculum का. जब आप बात करते हैं Universität की, यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनफैक्ट आप इनको ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज भी बोलते हैं, जो कि उनकी करिकुलम जो होती है वो मेनली टुवर्ड्स विद द रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज जाती हैं. So they offer you the theoretical and thesis based education and बच्चे यूजुअली जब भी बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी एंड रिसर्च टाइप के कोर्सेज के अंदर में अप्लाई करना चाहते हैं, सो दे गो विद दीज टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी विच इज ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ देयर्स. दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, Universität. Coming to second kind of university, which is known as the Applied Science University. So these Applied Science Universities are also known as a vocational and professional designed universities. They look into the labor market need requirement of the country. So ये काफी labor market requirements को fulfill करती है और उनसे उनकी need को understand करके education के अंदर में indulge करती है. यहाँ पे बच्चे मोर ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सिस्टम को कैटर करते हैं देन टू थ्योरेटिकल नॉलेज लाइक यूनिवर्सिटैट कैटेगरी. तो आपको मार्केट का रिसर्च करना है, मार्केट के अंदर में आपको प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेशन सिस्टम लेना है. सो द एजुकेशन वुड बी लाइट मोड. आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल और थीसिस और रिसर्च ओरिएंटेशन कोर्स के अंदर में काम नहीं करना है इस यूनिवर्सिटी में. The third category is Technical 9 universities. The very famous one. This is a alliance of 9 university which is having all the inclination. Most of the time the inclination goes towards the technical courses. So this alliance has the 9 different universities like TU Munich, RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, Darmstadt, Dresden, KIT. Then we have Leibniz, Hanover and Stuttgart University. तो ये 9 यूनिवर्सिटीज की अलायंस हैं. अब करिकुलम वाइज हाउ दे आर डिफरेंट. सो दे हैव बोथ द ब्लेंडेड कोर्सेज में काइंड ऑफ. ये यूनिवर्सिटैट का रिसर्च ओरिएंटेड और थीसिस बेस्ड करिकुलम भी पढ़ा रही होती है और आपकी अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल एजुकेशन को भी ब्लेंड करती है. तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर में आप थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल बोथ टाइप ऑफ एजुकेशन को क्रैक कर सकते हैं with these universities. And basically, as I mentioned you that technical line universities is more inclined towards the technical courses. तो आपको हर तरह की वैरायटी के टेक्निकल कोर्सेज से रिलेटेड रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं विद द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज. सो ये हो गई आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी. Now coming to the private institutions. So जर्मनी के अंदर में बेसिकली जब हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर द बिजनेस स्कूल्स, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंस. देन वी हैव HHL Leipzig,
we have again that constructor universities and all. तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज के पास में या तो मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं और ये फेमस होती है मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए, या तो फिर टेक्नो मैनेजमेंट कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं जिसके लिए जर्मनी काफी फेमस है। अब इन यूनिवर्सिटीज के अंदर में भी कैटेगराइजेशन होता है। कुछ यूनिवर्सिटी बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज डिसेंट वन होती है, लाइक BSBI, EU एंड ऑल। तो यूजुअली आप अपने एकेडमिक्स के हिसाब से, एंड यस वन थिंग इज देयर, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है तो इनके पास में ट्यूशन फी होती है। आप यूजुअली अपने बजट के हिसाब से यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज के अंदर में स्कॉलरशिप्स ऑप्शंस होता है, बट कंपेरेटिवली स्कॉलरशिप भी काइंड ऑफ 4,000 to 6,000 मैक्स टू मैक्स 10,000 यूरोज के अराउंड में आपको प्रोवाइड होती हैं। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ द प्राइवेट वंस। नाउ अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज के बारे में जो मैंने आपको बताना था कि आपने यूनिवर्सिटी में जाके आप बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के कोर्सेज कर सकते हो, बट अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ अलाउड होते हो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री के लिए, बिकॉज ये थीसिस बेस्ड करिकुलम आपको ऑफर नहीं करती। एज आई सेड कि ये प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो ऑफ कोर्स आपकी जो एजुकेशन सिस्टम रहेगी वो बैचलर्स या मास्टर्स तक ही कन्फाइंड रहेंगी। Now, this is about the universities and the German universities. अब हम आते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एंड दैट्स रिलेटेड टू आपकी intakes. So Germany has two type of intakes, winter intake and summer intake. Winter start in the month of September and October. Summer starts in the month of March and April. So the very famous one is, of course, the majority goes with the winter intake because that is their major intake. विंटर की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो समवेयर स्टार्ट्स फ्रॉम द दिसंबर एंड इट गोज टिल जुलाई 15। तो यूनिवर्सिटीज आती रहती हैं, 1-1.5 महीने का आपको विंडो देती हैं टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशंस इन दिस यूनिवर्सिटीज, एंड देन दे क्लोज बाय। सेकेंड इनटेक जो होता है वो होता है समर इनटेक, और एप्लीकेशन समवेयर स्टार्ट होती है अगस्त एंड सितंबर से, एंड Jan 15th यूज्ड टू बी देयर लास्ट डेडलाइन। सो दीज आर द टू इनटेक्स। अब होता क्या है ना कि कुछ यूनिवर्सिटी या तो सिर्फ विंटर में आती है, कुछ यूनिवर्सिटी या तो सिर्फ समर में आती है, और कुछ यूनिवर्सिटी विंटर और समर बोथ इनटेक्स को प्रोवाइड करती हैं आपको। तो दैट यू कुड सी अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर चूजिंग इन द यूनिवर्सिटी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड स्टेप। लाइक ठीक है, हमने बात कर ली यूनिवर्सिटीज की, हमने बात कर ली इनटेक की, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, क्योंकि हमने इनटेक की बात करी और हमने एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करी है। सो जर्मनी में जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, दे हैव 3 ways to apply it. That is, one is direct applications, second one is indirect application, and third is the direct and indirect application procedure. Direct application procedure के अंदर में हम यूनी पोर्टल के अंदर एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। इट गोज डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटीज पोर्टल। 70 to 80% यूनिवर्सिटीज डोंट चार्ज एनीथिंग, बट नाउ अ डेज 2026 में कुछ यूनिवर्सिटीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशंस लेती थी, दे आल्सो स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 to 100 euros फॉर द एप्लीकेशन। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लुक इनटू कि आप जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर में डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके अंदर में एप्लीकेशन चार्जेस हैं या नहीं है, क्योंकि पहले तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही एप्लीकेशंस लेते थे। नाउ सेकंड कैटेगरी इज इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। सो दिस इनडायरेक्ट एप्लीकेशन हैपेंस वाया यूनिअसिस्ट। व्हाट इज यूनिअसिस्ट? नाउ यूनिअसिस्ट इज अ मीडिएटर बिटवीन यू एंड यूनिवर्सिटीज, है ना। तो सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो यूनिअसिस्ट के अंदर में जाती हैं। यूनिअसिस्ट उसको इवेलुएट करके वट एवर द रिपोर्ट्स यूज्ड टू बी देयर, दे यूज्ड टू फॉरवर्ड इट टू द यूनिवर्सिटीज। तो पहली एप्लीकेशन चार्ज जो यूनिअसिस्ट की होती है दैट इज 75 euros, एंड द रेस्ट एप्लीकेशन चार्जेस यूज्ड टू बी 30 euros ईच। मतलब पहली जो आप एप्लीकेशन करोगे वो पहली सबसे एक्सपेंसिव रहेगी, जो कि 75 euros के अराउंड में आएगी, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज पे 30 euros भी आपको चार्ज करेंगी। मतलब उसके बाद में जो चार्जेस आएंगे वो 30 ही रहेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात गाइड करना चाहूंगी कि पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस ले रही थी, नाउ स्लोली दे स्टार्टेड कमिंग टू यूनिअसिस्ट, दे स्टार्टेड यूजिंग द यूनिअसिस्ट पोर्टल। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है, मे बी लास्ट ईयर आपने जिन यूनिवर्सिटीज के अंदर में एप्लीकेशन फाइल करी है वो डायरेक्ट गई हो, बट अब वो यूनिवर्सिटी शायद इस इनटेक के लिए या फिर कमिंग इनटेक के लिए यूनिअसिस्ट के थ्रू ली जा रही है।
Now the third, that's the most important thing, that third kind of application procedure या जो आपका way है, that is direct and indirect application. So the application goes in the uni portal also, and it goes the application goes to the uni SS2, and this process is called a VPT process. A VPT process क्या है ना? That's a documentation evaluation process which happens in Germany, which has been demanded by few of the universities. जरूरी नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी वीपीटी प्रोसेस रखे, बट यूनिक टाइप की यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली दे आस्क फॉर वीपीटी प्रोसेस. व्हाट इज वीपीटी? वीपीटी इज अ डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस. आपकी ट्रांसक्रिप्ट जाती हैं. आप अगर 10th में हो तो आपका 10th एंड 12th जाएगा. अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपका 10th, 12th ग्रेजुएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वहां पे कुरियर हो करके. नाउ व्हाट इज इज ऑनलाइन नाउ. सो इट गोज टू यूनी असिस्ट. एंड यहाँ पे आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, आपकी जो ग्रेडिंग स्केल है, आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं, ये इवेल्युएट होते हैं इन जर्मन ग्रेडिंग स्केल एंड जर्मन एजुकेशन सिस्टम. एंड द क्रिएट अ रिपोर्ट, एक आपके पास में आ जाती है और दूसरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटीज में जाती है. जो भी यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन दैट उसके बाद में डिसीजंस लेती है, आपकी एडमिशंस या रिजेक्शन उस बेस पे होता है, जो रिपोर्ट बन करके वीपीटी के थ्रू उस यूनिवर्सिटी के पास में गया है. सो वीपीटी डॉक्यूमेंटेशन इवैल्यूएशन, जैसा मैंने आपको बताया, इज नॉट आस्क्ड बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज. दैट्स क्वाइट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोसेस व्हिच इज आस्क्ड बाय फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉर बोथ द अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एंड मास्टर्स स्टूडेंट हु इज अप्लाइंग टू दिस यूनिवर्सिटीज. तो ये हो गई थर्ड कैटेगरी. नाउ वीपीटी प्रोसेस में कम से कम आपको 4 to 6 weeks to 8 weeks का भी टाइम लग जाता है. यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन, जस्ट इन केस इट्स July 15, देन यू शुड पंच दैट एप्लीकेशन इन मंथ ऑफ मे, बिकॉज 6 से 4 to 6 weeks to 8 weeks भी लगने के चांसेस हो सकते हैं वीपीटी के अंदर में. अगर आप लेट एप्लीकेशन डालते हो या लेट वीपीटी प्रोसेस करते हो तो एनी विच वेज आपको यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं से रिजेक्शन दे देती है. तो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसीजर.